दुआ करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, God of grace, mercy, and peace, once again thank you for this evening time when we could fall prostrate at their feet, worshipping you in spirit and in truth. Dear for Lord, even as we to meditate a small portion of the scriptures, Lord, prepare our hearts so that we may bring a worthy worship unto you. Lord, even speak to the people who are on live, who are on Zoom and other social media platforms. Lord, anoint thy servant also in translation. Lord, take hold of us. In Jesus' precious name we pray. Amen. Dear friends, it's a privilege to worship our living God. अजीज़ों, हमारे ज़िंदा खुदा की इबादत करना एक इस्तेखाक है। And the Lord's Day has been specially prepared for us. खुदा का दिन ख़ास करके हमारे वास्ते तैयार किया गया है। It's not only a day of rest. ये सिर्फ एक आराम करने का दिन नहीं, It's a day when we exalt our Lord. बल्कि ये दिन ऐसा दिन है जिस दिन में हम हमारे खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। Today I just want to focus on a very small phrase. आज मैं एक छोटा सा जुमले पर मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। It is found in Genesis chapter 22 and verse 5. ये जुमला पैदाइश की किताब चैप्टर 22 और वर्स 22 का 5 में हम देखते हैं। These are the words of Abraham. ये अब्राहम ने ये बातें कही थी, where he says, we will worship you and return to you. यहाँ लिखा हुआ है कि हम सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। These are the words of Abraham to his servants. ये अल्फाज अब्राहम ने अपने खादिमों से कहा था। In this world, the most beautiful people we have known are those who have known defeat. आज के इस दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग जिनसे हम वाकिफ़ हैं वो लोग कौन हैं? जिन्होंने हार को कबूल किया है। The most beautiful people are those who have suffered. सबसे बेहतरीन या खूबसूरत लोग वो हैं जिन्होंने तकलीफ़ें हार को कबूल किया है। The most beautiful people are those who have suffered. जिन्होंने तकलीफ़ें हार को कबूल किया है। The most beautiful people are those who have suffered. जिन्होंने तकलीफ़ें हार को people are those who have suffered. जिन्होंने तकलीफ़ें हार को people are those who have suffered. जिन्होंने तकलीफ़ें हार people are those who have suffered. जिन्होंने तकलीफ़ें हार concept of worship is maybe very strange to us. अजीज़ों, इबादत का ये कॉन्सेप्ट जो है वो शायद हमको बहुत अजीब सा लगता होगा, But worship itself is a very test for us. लेकिन इबादत जो है वही हमारे लिए एक बड़ा इम्तिहान जैसा है। And we know in the case of Abraham, even before the promise of a son, there was a promise of Abraham becoming a great nation. और हम देखते हैं कलाम में कि अब्राहम को खुदा ने एक बेटे का वादा, बेटे देने का वादा कहने से पहले ही उसने कहा था अब्राहम से कि मैं तुम्हें बहुत से लोगों का बाप बना दूंगा। At about the age of 75, Abraham was out of his place, out of his native place. और 75 ईयर्स के वक्त में खुदा ने अब्राहम को बुलाया था। And at exactly 100 years, and Isaac was born. और ठीक 100 ईयर्स के वक्त यानी 100 बरस होने के बाद इसहाक पैदा हुआ था। And more than 100 years when Abraham was put to test. और अब 100 बरस पार करने के बाद खुदा ने अब्राहम को एक टेस्ट यानी इम्तिहान में या अब्राहम को परखने लगा था। Dear friends, our worship is a test of our life, of our character. अजीज़ों, इबादत जो है वो हमारे किरदार का एक इम्तिहान है या एक परख है। First of all, for Abraham there was a family test. सबसे अव्वल हम ये देखते हैं कि अब्राहम को अपने घर में ही इस इम्तिहान को पास करना था। He said, come out of your families, come out of the Ur of the Chaldees. क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू अपने घराने को छोड़कर कल्दियों के अपने शहर को भी छोड़कर बाहर आ जा। After the family test came the famine test. हाँ,
और इसके बाद फाका या रोज़ा के फाका के काल का इम्तिहान हुआ था। Again in chapter 13 there was a fellowship test. और उसके बाद हम देखते हैं रिफाकत को लेकर एक परख हुआ था, जांच हुआ था। He had to separate from his nephew Lot. मतलब अपने भांजे से वो दूर, लोत से वो दूर हो गया था। Now again in this passage chapter 22 there was this father's test. और यहाँ पे 22वां बाब में हम देखते हैं कि अब्राहम के सामने एक बाप होने के नाते एक इम्तिहान या एक जांच लगाया गया है। Out of these 4 tests, the father's test was the most important and most the toughest one. ये 4 टेस्ट जो अब्राहम को दिए गए थे, इनमें से सबसे मुश्किल टेस्ट ये है कि बाप होने के नाते जो टेस्ट हुआ है वो। We might be thinking that God was doing the most injustice to Abraham. देखने से ऐसा पता चलता है कि शायद खुदा ने अब्राहम को लेकर बहुत नाइंसाफ़ी की है। He delayed the giving of a son. ऐसा लगता है कि खुदा ने अब्राहम को बेटे देने में देरी कर दी। And after Isaac was born, he was asked to give as a sacrifice. और इसहाक के पैदाइश के बाद उसको कुर्बानी चढ़ाने के लिए कहा गया था। It appeared as if the covenant that God gave in Genesis 12 was being nullified. ऐसा लगता है कि जो अहद खुदा ने अब्राहम से पहले बांधा था वो खारिज हो गया। And even after the greatest miracle of giving a child to Abraham and Sarah in their old age, he was nullifying it. और ऐसा लगता है कि खुदा उनके बुढ़ापे पे अब्राहम और सारा को एक बेटा बख्शने के बाद भी वो अपने अहद को वो रद्द कर रहा है। But God was teaching Abraham what wholehearted commitment means and what real worship is. लेकिन यहाँ खुदा ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि अब्राहम को ये सिखा रहा है कि तहे दिल से इबादत करना और तहे दिल से खुदा की ताबेदारी में रहना क्या होता है। The first point I want to refer is, यहाँ पे पहला मैं एक बात बताना चाहता हूँ। there is no worship without a sacrifice. मैं ये कहता हूँ कि एक कुर्बानी के बगैर इबादत बिल्कुल नहीं होती है। Today our worship is based on the sacrifice of our Lord Jesus. आज हमारी इबादत भी हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी पर ही मुबनी है। Where there is a sacrifice, there is bound to be a cost. जहाँ कहीं कुर्बानी होती है वहाँ कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ती है। Today we come to God through the perfect sacrifice of Jesus Christ. आज हम हमारे खुदा के पास हमारे खुदावंद यीशुआ के मुकम्मल कुर्बानी को लेकर उस पर तकिया करते हुए आते हैं। If we split the book of Hebrews into two parts, अगर हम इब्रानियों की किताब को 2 टुकड़े में बांटे, the first half deals with the Lord Jesus Christ, who is our true tabernacle. पहले हिस्से में हम देखते हैं हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में जो हमारे लिए खुदा का मस्किन है। And the second half deals with our Lord Jesus Christ as our high priest offering his own blood. और दूसरे हिस्से में हम देखते हैं हमारे खुदावंद को हमारे लिए सरदार काहिन होते हुए देखते हैं जिन्होंने अपने खुद का खून हमारे लिए चढ़ाया है। When God asked Abraham to offer his son Isaac as a sacrifice, जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू जाकर अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा, he didn't bargain. उसने वहाँ बार्गेन नहीं किया था। He allowed himself to offer his prized possession. उसने अपने आप को खुदा के मातहत कर दिया और कीमत अदा करना वो चाहा। That's what our God the Father did. हमारे खुदा बाप भी ऐसा ही कुछ किया है। He offered his only son Lord Jesus Christ. उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते मसलूब किया। And he made him to be a sacrifice for us. और हमारे लिए उन यीशुआ को कुर्बानी चढ़ाई। And today the sacrifice of Lord Jesus Christ is available to everyone. और आज हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी सबों के लिए मौजूद है। So our worship revolves around the sacrifice of Lord Jesus Christ. इस तरीके से हमारी इबादत हमेशा हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी के इर्द गिर्द फिरती है। So there is no worship without a sacrifice, number one. तो पहली बात यह है कि इबादत हमेशा कुर्बानी के बगैर इबादत कभी भी नहीं होती है। And second point is there is no worship without faith. और दूसरी बात यह है कि ईमान के बगैर इबादत नहीं होती है। Abraham had to go forward and offer his son Isaac on the basis of faith. अब्राहम आगे बढ़ा और इसहाक की कुर्बानी चढ़ाने के लिए ईमान से आगे बढ़ा। He had to trust God. उसने खुदा पर ईमान लाया। He had to trust God that God will do everything right for him. उसने खुदा पर ऐसा ईमान लाया कि खुदा उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक करेगा। Probably Genesis 50:20 and Romans 8:28 was in operation.
शायद पैदाइश की किताब 50:20 और रोमियों की किताब 8:28 शायद वहाँ काम कर रहे हैं वो कलाम। God will do everything for good to those who love Him. वहाँ क्या लिखा हुआ है, जो खुदा के पसंदीदा लोग हैं उनके लिए सब चीज़ें मिलकर वो नेमत पैदा करने के लिए काम करती हैं। He had to trust God that God will provide an alternative. उसने खुदा पर भरोसा रखा कि खुदा ज़रूर उसके लिए एक अल्टरनेटिव मुतबादिल पैदा करेगा। He had also the faith that God is able to resurrect Isaac if need be. और उसका अब्राहम का ये भी ईमान था कि अगर इसहाक हकीकत में मर भी जाए तो फिर खुदा ज़रूर उसे वापस जिंदा करेगा। Because in the chapter of faith of Hebrews chapter 11, क्योंकि मोमिनों का बाब जो कहा जाता है यानी इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 में, because it tells about Abraham, वहाँ अब्राहम का भी जिक्र है। even God had the power to resurrect people even out of death. और ऐसा भी लिखा हुआ है कि खुदा ऐसी ताकत रखता है कि मरने के बाद भी लोगों को वो फिर जिंदा कर सकता है। It says Abraham had that faith. और वहाँ लिखा हुआ है कि अब्राहम के दिल में उस तरह का ईमान बसता था। And further in Hebrews chapter 13 and verse 6, और इब्रानी की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 6 में, without faith it is impossible to please God. लिखा हुआ है कि बगैर ईमान के खुदा का पसंदीदा होना बिल्कुल नामुमकिन है। So the best worship that we can offer is when we are people of faith. तो हकीकी इबादत या अफजल इबादत ये होती है कि ईमान के साथ जो चढ़ाया जाती है वही अफजल इबादत होती है। Dear friends, sometimes we take worship very lightly. अजीज़ों, कभी कभार हम इबादत को बहुत आसानी से ले लेते हैं। Sing some songs, कुछ गाने गा लेते हैं and say some prayers, या कुछ दुआएं मांग लेते हैं and then we call it a worship. और कह देते हैं कि हमारी इबादत हो गई। But these are all the ingredients that we should have when we worship God. लेकिन खुदा की हकीकी इबादत में ये सारी चीज़ें भी शामिल रहनी चाहिए। First of all, you should have appropriated the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Number one. पहली बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी जो है उसे पहला अपनाना चाहिए। And secondly, God expects that we should be people of faith. और दूसरी बात यह है कि खुदा हमसे ये चाहता है कि हम ईमान के लोग रहें। Then the third most important thing that we find in Abraham is obedience. और तीसरी बहुत अहम बात अब्राहम की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि वो बहुत फरमान बरदार रहता था। He never questioned God. उसने खुदा को कभी भी खुदा से सवाल नहीं पूछे। I always tell in my bank like this. मैं हमेशा मेरे काम करने के बैंक में ऐसा कहते रहता हूँ। When the clerks or the officers around me ask something, जब मेरे इर्द गिर्द रहने वाले क्लर्क्स हों या ऑफिसर्स हों, जब मुझसे सवाल करते हैं, not to question why but to do and die. Not to question why but to do and die. तो मैं कहता हूँ कि क्यों करके सवाल नहीं करना, लेकिन काम करो, लेकिन मरने तक करो। Yes, that's what we have. That's the attitude that we should have before God. खुदा के सामने हमारा रवैया भी ऐसा ही रहना चाहिए। Never question God. खुदा को सवाल मत पूछो। God cannot and will not accept the worship of a rebel. अगर सरकशी करने वाला इबादत पेश करता है, उस तरह की इबादत खुदा कभी भी कबूल नहीं करेगा। Here we see two obediences. यहाँ पे हम दुगुनी फरमान बरदारियाँ देखते हैं। Isaac obeyed his father Abraham. इसहाक ने अपने वालिद अब्राहम की फरमान बरदारी दिखाई, And Abraham obeyed God. और अब्राहम ने भी खुदा की फरमान बरदारी दिखाई। Living a disobedient life, we cannot worship God. सरकशी करते हुए, नाफरमानी दिखाते हुए हम खुदा की इबादत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। Today we have the model of Lord Jesus Christ. आज हमारे सामने हमारे खुदावंद यीशुआ का एक नमूना है। Because in Hebrews chapter 5 and verse 8, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8 में we'll read that verse. हम वो पढ़ेंगे। Even though he was a son, he learnt obedience. वहाँ लिखा हुआ है, हालांकि वो बेटा होते हुए भी उसने फरमान बरदारी सीखी। So Jesus Christ is our model in obedience. तो हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशुआ एक नमूना है फरमान बरदारी में। So after sacrifice, after faith, the third ingredient is obedience. तो ये तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है फरमान बरदारी। Now we come to the fourth part, अब fourth हम lesson.
चौथा सबक जो है वो देखेंगे। There is no there is no worship without an altar and a tent. एक खैमा के बगैर और एक मज़बे के बगैर इबादत बिल्कुल नहीं होती। If you go back to Genesis chapter 12, अगर हम वापस पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 जाएंगे, in verse 7, वहाँ पे आयत नंबर 7 में लिखा हुआ first है, of all, Abraham establishes an altar. यहाँ पे अब्राम एक मज़बा बनाता है, And secondly, in verse 8, he establishes he fixes up a tent. और उसके बाद आयत नंबर 8 में हम देखते हैं कि वो एक खैमा बना लेता है। Dear friends, there is a spiritual significance to these two things. अजीज़ों, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके लिए एक रूहानी मतलब है। Altar represents our relationship with God. मज़बा या कुर्बान गाह जो है वो हमारे खुदा से हमारी रिफाकत जो है उसे बयान करता है। The tent represents the relationship with the world. खैमा जो है वो इस दुनिया के साथ हमारी रिफाकत जो है उसे बयान करता है। And wherever Abraham transported himself or went, he always established an altar and a tent. और जहाँ भी अब्राहम आगे बढ़ते गया, चलते गया, और उन हर जगहों में अब्राहम ने मज़बे या कुर्बान गाह बनाते गया। Altar is a platform for death, sacrifice and separation. कुर्बान गाह क्या है? वो जगह है जहाँ पे मौत और कुर्बानी और जी उठना ये सारी बातें होती हैं। Altar is a place where something is sacrificed. कुर्बान गाह पर एक चीज़ को, एक जानदार की कुर्बानी हम करते हैं। So dear friends, that is most important. We establish a relationship with God. अजीज़ों, हमारे खुदा से रिफाकत रखने के लिए कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। Today God accepted us on the basis of the sacrifice of His Son Lord Jesus Christ. आज हमारे खुदा ने हमें इसलिए कबूल किया क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी की वजह से। And not only that, there is a second point that we have to understand from this. और इतना ही नहीं बल्कि इसमें सीखने के लिए और एक हिस्सा भी है। When we come to worship, we have to examine ourselves. What is that one thing that I have put on the altar? आज जैसे मैं खुदा की इबादत करने के लिए आ रहा हूँ तो मैं कौन सी चीज़ को लेकर आ रहा हूँ जिसे मैं उस कुर्बान गाह पर रख सकूँ। God expects something, a sacrifice from our side. हमारी तरफ से भी खुदा एक कुर्बानी चाहता है ताकि हम वो चढ़ा सकें। And God, that is worship, dear friends. अजीज़ों, ये इसी को इबादत कहते हैं। Today, as we come to here to worship, आज हम सब खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं। what God is questioning us. What is one thing that you have put on the altar? तो खुदा हमसे सवाल कर रहा है कि तू वो कौन सी चीज़ को लेकर आया है जिसे तू कुर्बान गाह पर चढ़ा सकेगा आज। When I think of Acts chapter 6, 7 and 8, जब मैं रसूलों के आमाल की किताब बाब नंबर 6, 7 और 8 को सोचता हूँ I always think about Stephen. तो मैं हमेशा स्टेफनुस के बारे में सोचता हूँ। He placed himself on the altar of sacrifice. उसने अपने आप को खुदा के कुर्बान गाह पर अपने आप को चढ़ा दिया। That's why when he was about to die, he was speaking almost like the words of Lord Jesus Christ. इसीलिए जब वो मरने लगा तो उस वक्त तकरीबन हमारे खुदावंद यीशुआ के कलाम जैसे ही वो कलाम करते गया। Then the tent speaks of our relationship with this world. उसके बाद एक खैमा जो है वो इस दुनिया के साथ हमारी रिफाकत के बारे में बयान करता है। That's also most important in our worship. हमारी इबादत में ये भी बहुत अहम हिस्सा है। How lightly we have taken hold of this world. और इस दुनिया को हम कितनी आसानी से हम पकड़े रहे हैं। Or are we greatly attached to this world? या हम इस दुनिया में गहरे तौर से इस दुनिया में हम अंदर जा चुके हैं क्या? Now not the world, not the things of this world. So says brother James. भाई याकूब ने अपने कलाम में कहा है कि तुम दुनिया से या दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ना रख। Loving this world is an enemy with God. इस दुनिया से मोहब्बत रखना, कलाम कहता है कि दुनिया से मोहब्बत रखना खुदा से अदावत रखना है। God says if you love the world, it's almost like doing an adultery. खुदा का कलाम कहता है कि इस दुनिया से अगर तू रिफाकत रखेगा या प्यार रखेगा तो ये जिनाकारी का बराबर है। So we have seen 4 things. तो हमने 4 बातें आज देखी है। One thing is sacrifice. पहली बात है कुर्बानी। And the second thing is faith. दूसरी बात है ईमान। And third thing is obedience. और तीसरी बात है फरमान बरदारी। And fourth thing is we have to establish an altar and a tent. और चौथी बात है हमें खुदा के पास आकर एक कुर्बान गाह और एक खैमे को
कायम करना है। And the fifth most important thing is, और पांचवी अहम बात ये होती है, there is no worship without preparation. तैयारी के बगैर इबादत नहीं होती है। If we see this concerned chapter, it's chapter 22 of Genesis, अगर आप पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 को देखेंगे, Abraham made a lot of preparation. Verse 3, आयत नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने बहुत बड़ी तैयारी की थी। यहाँ पे rose early in the morning, उसने सुबह सवेरे उठा saddled his donkey, और उसने अपने गधे पर चार जामा कसा, he took Isaac and 2 of his servants. और उसने अपने खादिमों को, 2 खादिमों को और इसहाक को भी साथ लिया। All these activities indicate that he made careful preparation for worship. ये सारे काम जो हैं हमें ये बयान करते हैं कि उसने इबादत के लिए बहुत बड़ी तैयारी की थी। That's why in the book of Ecclesiastes chapter 5 and verse 1, इसीलिए वाइस की किताब बाब नंबर 5 के आयत नंबर 1 में लिखा हुआ है, you are exhorted to be very careful when you go to the worship, when you go to his temple. वहाँ लिखा हुआ है कि तू जब खुदा के हैकल में जब तू जाएगा तो तू बहुत एहतियात से जाना। So Abraham took care of the minutest details. इसीलिए अब्राहम ने भी बहुत छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ा तवज्जो करके ध्यान दिया। Dear friends, sometimes we are so careless in going to the worship. अजीज़ों, कभी कभार हम खुदा की इबादत में शामिल होने में बहुत आलस होते हैं। I make a statement that we have to prepare 6 days to go and worship on the Lord's Day. हाँ, मैं तो कहता हूँ हमेशा कि खुदा के दिन खुदा की इबादत करने के लिए उसके पहले 6 दिन तैयारी करो। For a days of worship and in the presence of the Lord, we have to make a preparation for 6 days. इसीलिए खुदा के दिन खुदा के पास आकर इबादत करने के लिए 6 दिन की तैयारी आपको ज़रूरी है। I was working in a very small place. मैं एक बहुत छोटी जगह में काम करता I was था। a bank manager. मैं एक बैंक में मैनेजर रहा था। I used to go to a worship place where only 5 people gathered. मैं एक इबादत करने की एक जमात के पास जाता था जहाँ सिर्फ 5 लोग जमा होते थे। And among these 5 people, there's one woman. और इन 5 लोगों के बीच में एक औरत होती थी, बहन होती She थी। used to be clad in a white sari. वो हमेशा सफेद पोशाक में आती थी And she used to come with that blue New Testament. और एक छोटी सी ब्लू न्यू टेस्टामेंट पकड़ कर आती थी। She would come early in the morning and sweep all the church and the premises. सुबह सवेरे आती थी और चर्च के जो जगह है वो सारी जगह को साफ करती थी। And she used to be very faithful in attending the worship. और इबादत में शामिल होने में बहुत ही वफादारी से वो शामिल होती थी। But do you know what was her condition in the other 6 days? लेकिन क्या आपको पता है बाकी 6 दिनों में उसकी हालत कैसी थी? She used to wear only tattered saris. Tattered, broke, all ante chinigina kuda. Alright. वो फटे हुए कपड़े पहनती थी। And she used to go around just making some small errands or doing some work and then eating something what the people give. और वो बाहर जाती थी और छोटे मोटे काम करती थी और जो भी लोग देते थे वो खाकर जीती थी। But Sunday comes, लेकिन इतवार के दिन she dressed nicely with one white sari and she used to come to the worship place. एक ही साड़ी उसके पास होती थी, सफ़ेद साड़ी, और वो साड़ी पहनकर खुदा के घर में आती थी। She knew the what you call the real worship. उसको पता था कि हकीकी इबादत क्या होती है। Dear friends, that's the way we have to prepare for worship. अजीज़ों, हमें भी इस तरीके से इबादत के लिए तैयार होना है। We cannot be living a wayward life for 6 days and then coming on casual in a Sunday and worship. 6 दिन हमारे मनमौजी के मुताबिक जीते हुए इतवार को आकर खुदा की इबादत में शामिल नहीं हो सकते। That's why I call worship is a lifestyle. इसीलिए इबादत को जिंदगी जीने का एक तरीका कहते हैं। How was our behavior throughout the 6 days? पिछले 6 दिनों में हमारी जिंदगी कैसी रही? Was it acceptable to God? क्या वो खुदा के सामने मकबूल है? Or did it bring shame to our Lord? या हमारे खुदा को बहुत उसके नाम की बाइज्जती की है? So these are all the things that matter when we worship Him. हाँ, इस तरीके से ये सारी बातें मैटर करती हैं जब इबादत के लिए हम
आते हैं। So a difficult circumstance brought the best from Abraham. तो इतनी सारी मुसीबतों में से भी ये सारी मुसीबतें मिलकर अब्राहम के लिए नेकी पैदा की हैं। After the test was over, he found himself on the victory stand. और ये इम्तिहान ख़त्म होने के बाद वो कहाँ गया? वो जीत के मैदान पर खड़ा हुआ। There was this grand statement from God. और उस वक्त खुदा ने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ कहा है। Now I know that Abraham fears God. खुदा कहता है कि मैं अब जानता हूँ कि अब्राहम खुदा से डरता है। So worship is fearing God. तो इबादत क्या है? खुदा से डरना है। So dear friends, as we come to worship, इसीलिए अजीज़ों, जैसे ही हम खुदा की इबादत के लिए आए हैं, first of all, there is a sacrifice. पहली बात यह है कि कुर्बानी रहनी चाहिए। Thank God for the sacrifice of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ की कुर्बानी को लेकर खुदा का शुक्र है। And secondly, for the faith. दूसरी बात है ईमान रहना चाहिए। The Bible exhorts us to exercise faith. अब खुदा का कलाम हमें हमेशा ईमान में बरकरार रहने के लिए हमारी रूह की अफजाई करती है। What is your faith life? आपकी रूहानी जिंदगी, ईमान की जिंदगी कैसी है? Is it growing क्या वो बढ़ रही है or is it diminishing? या वो घट रही है? The disciples asked Lord Jesus Christ, increase our faith. खुदावंद के चेलों ने, शागिर्दों ने खुदावंद यीशुआ से पूछा कि हमारे ईमान को बढ़ा। And thirdly, और तीसरी बात, God wants an obedient life when we worship Him. हमारे खुदा के पास आकर इबादत करने के लिए जब आते हैं तो खुदा हमसे फरमान बरदारी की जिंदगी मांगता है। If you have a rebellious heart, God cannot accept that worship. अगर आपके अंदर सरकशी करने का दिल है तो उस दिल से आने वाली इबादत को खुदा कबूल नहीं करता। Then God wants us to establish an altar and pitch a tent. और उसके बाद खुदा हमसे चाहता है कि हम एक कुर्बानगाह को बनाएं और एक खैमे को खड़ा करें। What is it, that one thing that you have placed it on the altar? तो आज आप कुर्बानगाह में कौन सी एक चीज़ को चढ़ाने वाले हैं? I like that woman who with a jar of very precious perfume, she broke it and anointed the feet of Lord Jesus मुझे Christ. तो बहुत ये बात बहुत पसंद आती है कि उस औरत ने, जिसने उस इत्र के बोतल को लाकर उसको उसमें उसको तोड़कर इत्र चढ़ाया। The perfume that she brought must have costed her a year's salary. वो इत्र जो उसने लाया था शायद वो उसके साल भर की कमाई से खरीदा हुआ होगा। Anointing the Lord Jesus Christ was not instantaneous. हमारे खुदावंद यीशुआ का मसा करना वो एकाएक से उनके दिल में नहीं आया था। It was not emotional. वो इमोशन से पैदा नहीं हुआ था। It was out of a careful preparation. बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके इबादत हमें करना चाहिए। So dear friends, there should be some preparation for worship. अजीज़ों, हमें भी याद रखना चाहिए कि इबादत के लिए तैयारी ज़रूरी है। When these ingredients are found in us, जब ये इंग्रेडिएंट्स हमारे अंदर होते हैं, God accept that worship. तब खुदा ज़रूर उस इबादत को कबूल ठहराता है। May God help us to bring a worthy worship unto Him this evening. आज शाम को खुदा के सामने एक लायक तरीके से इबादत पेश करने का मौका खुदा हमें बख्शे।